Good morning students and welcome to our e-learning session for class 8. Today we are on lecture number 3 for chapter number 7, that is environmental changes. As I said, very important chapter, interesting as well as very important chapter, not for only your class 8, for your further studies as well. Number of points what we have previously discussed. So beginning we will do in the starting of the lecture, we will take a recap, recall, revision what we have discussed in previous 2 lectures. Then today a very important concept, new points about the how does the earth get heated. If you remember, we talk about the global warming. Okay, what is the greenhouse effect? So what types of gases, what are the reason, that point what we are going to discuss, and measure to prevent the global warming. Now as we know the problem, now we know the problem, so we have to come out with the solution. So this all point today we are going to discuss. So let's begin with our revision, first revision session. Okay. So first of all, what is atmosphere? In simplest term, we can say atmosphere is the envelope of air which surround our earth. So the air that envelopes the earth from all sides is known as atmosphere. Students, again I am telling you, please, whenever the important points I am mentioning, you need to underline. It is a good habit that you should underline in your textbook. Okay, so the air that envelopes the earth from all sides is known as atmosphere. Okay, then if there is a change in this structure, that what we say is the environmental changes. So what is the environmental changes? As a lesson we are learning. Okay, so the changes that occur in temperature, direction of wind, moisture due to the global warming is known as environmental changes. Now due to the number of reasons, there are change in temperature, humidity, direction of wind, moisture. So this type of change which occur in atmosphere, that what we say is the environmental changes. Another point what we have discussed was about the climate and weather. Though it sounds same, सुनने में ये एक लगता है, but it is having the different meaning, and very deeply, very nicely we have discussed and we understood now. So what is the weather? Weather is the condition of temperature, rain and humidity, that is the moisture what we can say, okay, that in any region for the particular period of time. So for a short period of time there is a change in the rain or moisture or in the temperature which remain for the short period of time, that we say is the weather. So weather can change in few days, few hours, in few minutes as well. Okay, so that what we know it's about the weather. Then we discuss about the climate. So climate is a long period of time. Excuse me. So the average condition of temperature, rain, moisture for over more than 35 years. Average of 35 years, that we consider, and this situation we say as a climate. So what is a climate? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years is known as climate. So this is the differentiate between the weather and climate. Weather is for the short period of time, whereas climate we consider for the long period of time, span of more than 35 years. New topic what we discussed about the greenhouse farming. Absolute new concept. Up to class 7 you have never learned, never heard as well. So greenhouse farming means what? It's a new technique of farming, and the countries with the cold climate receive the less heat from the sun, and thus hampers the growth of the plant, as basic requirement to grow the plant is heat, that is the sunlight, water, favorable condition. Okay, so the hamper that growth of the plants and vegetables, and
arrangement are made to accumulate adequate the heat from the sun, and the roof is made up of glass. Such a type of structure is built with the help of, like, roof will be of the glass and the cloth, and that penetrate and sustain the heat inside the building. So this type of technique of the farming is known as the greenhouse farming. Okay. Then on page number 39, 6 different picture was given, and in that we talk about the change in the climate, changing the climate, drought, famine, flood, melting of glaciers. This all are the natural disaster. We learn also about the natural disaster. So these are the result of changing in climate. कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं, या तो बहुत ज्यादा बारिश, एकदम से सूखा पड़ जाना, बिल्कुल बारिश ना होना, ग्लेशियर्स मेल्ट करना, फ्लड occurrence. This all are the result of changing in climate. Now why there is a change we discussed, that is the environmental changes, due to the environmental changes. Now how it's happened, how it's occur, as we are doing our activities very carelessly. Okay, we are least bothered with the nature. We are not satisfying the requirement how to maintain the balance in the environment, and that is the reason, due to our activities, thoughtless work what we are performing, this is the result of, and that is the result in environmental changes. Then very important point what we have discussed very briefly, and for your exam purpose please keep in your mind that the global warming is a hot cake topic, not for class 8 but for class 9, 10 and for your higher classes as well. And your conceptual understanding about the global warming is important. So what is a global warming? Global warming refers to an unequal continual rise in the average temperature of Earth climate system due to the greenhouse gases. Now please underline it. What is global warming? This is the definition, one word answer, or very important concept, that the global warming refer to an unequal condition or the continual rise in the average temperature of the Earth climate, that is due to the greenhouse gases. Now today we are going to discuss about the greenhouse gases only. Okay, so global warming क्यों होता है, या तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ोतरी कैसे होती है? जो गैसेस ऐसे हैं जो गर्मी को ट्रैप करते, गर्मी बढ़ाते हैं, ऐसे गैसेस जब एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर उसका प्रपोर्शन बढ़ता है तो हमारी पृथ्वी गर्म होती है, एंड दैट सिचुएशन वी कंसीडर एज अ ग्लोबल वार्मिंग. With the diagram it is given, very important concept to learn, not for class 8 but for your higher and further study. One of the most important concept in this chapter. Okay, then one activity, we can't say activity but just to think, to image that we have to cover ourselves with a blanket, thick blanket. अपने आप को हम जो गर्मी सर्दी में हम ओढ़ते कंबल से, अगर हम अपने आप को ढक दे तो 2-4 मिनट ठीक है, ठंडी होगी तो अच्छा लगेगा, बट इफ यू कंटिन्यूअसली रैप योरसेल्फ विद दैट थिक ब्लैंकेट, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा, घुटन होने लगेगी. सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन इज लाइक हैपनिंग विद द अर्थ ड्यू टू दिस gases. Now one thick blanket is covering the earth और conjunction हो रहा है, earth is can't breathe properly, पृथ्वी का वातावरण अंदर से गर्म हो रहा है, and that exactly system or the exactly condition what we say is it's a global warming. Okay, now today we will start with on the page number 14. So just have your attention should be on page number 40. So first of all, news from the newspaper. Every day there are, in the newspaper number of different newses आते हैं.
लास्ट वीक से पूरे जर्मनी में स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी इज हाईली अफेक्टेड विद द फ्लड। पूरे जर्मनी में फ्लड है। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड इज फेसिंग द फ्लड। सो न्यूज़पेपर में ऐसे कहीं पे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया। दिस टाइप ऑफ न्यूज़ वी यूज्ड टू रीड इन न्यूज़पेपर। सो फ्यू न्यूज़ आर गिवन और उसके ऊपर से हमें सोचना है व्हाट इज द क्लाइमेटिक चेंज, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, सी द इफेक्ट। नाउ सी एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्टर्न यूरोप हीट एक्सपीरियंस। नाउ यूरोप कंट्री टेम्परेट जोन में है। नाउ एवरेज टेम्परेचर में 5 डिग्री का इंक्रीज, जस्ट थिंक आउट, इट्स अ ह्यूज डिफरेंट। इट्स 5 डिग्री सुनने में छोटा लग रहा है कि 5 डिग्री, बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्टर्न यूरोप व्हिच लाई इन द टेम्परेट एंड द फ्रिजिड जोन, नियर टू द फ्रिजिड जोन, वहां पे 5 डिग्री का। नाउ हीट एक्सपीरियंस, now just think out the area which is a cold area, जहां पे कोई एसी पंखे का सोचेगा भी नहीं, ओके, थ्रू आउट द ईयर वहां पे मॉडरेट और कोल्ड टेम्परेचर रहता है। सो दे विल नेवर थिंक अबाउट द लाइक यू नो, सो 30 डिग्री 25 मोर देन 30 डिग्री इज अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर देम। सो ऐसे एरिया के जो बर्फ के नजदीक है, जो पोलर रीजन के नजदीक है, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट रीजन के अंदर सिचुएटेड है, in that area also now temperature is increased and it is not of in the point 5 degree Celsius is a huge gap or huge increase what you can say. So this is a one small example of environmental changes. Now see 14 degree Celsius temperature in Darjeeling reached to maximum of 28 degree in 2009. अब दार्जिलिंग भारत का हिस्सा है which receive the maximum rain area है, जहाँ पे चाय उगाई जाती है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री 14 होता है। Now it's increase in the double the number, now it's 28 डिग्री, मतलब 14 का डबल, 14 2 are 28. So due to this global warming, due to this environmental changes, दार्जिलिंग का टेम्परेचर, अब दार्जिलिंग में हमें पता है चाय उगाई जाती है, अब चाय की खेती के लिए जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट कंडीशन सुटेबल है, अब 14 डिग्री का अब 28 डिग्री पर पहुंच गया। सी द चेंजेस, वास्ट डिफरेंट इन द टेम्परेचर। देन स्नोफॉल इन डेजर्ट। नाउ जस्ट इमेज डेजर्ट, हमारे दिमाग में क्या होता है? डेजर्ट मींस व्हाट? रेगिस्तान, रेत का चारों ओर रेत रेत। अब बारिश नहीं होती जिस एरिया में, desert means what? less than 10 centimeter annum वहां पे बारिश होती, इसके बदले में snowfall. So what it shows? It shows the climate changes, it shows the environmental changes. How can you expect कि desert में बर्फबारी हो जाएगी? It is unexpected changes, isn't it? Then Mumbai received 942 milliliter rain in one day. अब मुंबई में बारिश होती है, इट इज ऑब्वियस, बट इतनी बारिश कि ट्रेन आगे आगे डूब गई, रास्ते पानी से भर गए। ट्रेन जिसको लाइफलाइन कहा जाती है, मुंबई की लाइफलाइन, द ट्रेन सिस्टम, यू नो, लोकल ट्रेन्स आर कंसीडर्ड एज द लाइफलाइन ऑफ मुंबई, एंड एब्सोल्यूट मुंबई वाज ब्लॉक्ड एंड स्टॉप्ड। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज। Then increase in temperature in Australia. Now Australia southern hemisphere continental continent है, island continent जिसको कहा जाता है, which lie in the southern hemisphere, absolute in the southern part. Now वहाँ पे भी increase temperature in Australia. जो ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे टेम्परेट जोन है पूरा, वहाँ पर भी गर्मी। Then सुंदरवन is submerging. सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा which created by the Ganga and Brahmaputra river, Sundarban delta. White tiger zone, we have learned number of things about Sundarban. is submerging. Submerging मतलब डूब रहा है पूरा, इतनी पानी की बाढ़ आ रही है, वहां पे दरिया का लेवल भी बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस सुंदरवन इज सबमर्जिंग, डूब रहा है सुंदरवन। दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। अब
एनिमल्स इंसेक्ट्स रहते हैं, दे विल गो, उनका घर डूब रहा है, सो दे हैव टू कम आउट, दे कांट कोप अप, ओके। देन रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंपू स्नो रिवर ऑफ नेपाल, नेपाल की रिवर है कुंपू, जिसमें रिडक्शन हो चुका है 5 किलोमीटर का, स्नो रिवर है, पानी घट रहा है, वो पीछे पीछे जा रही है, उसमें रिडक्शन हो रहा है। देन आइस कैप ऑफ साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट विद इन 35 days in Antarctica. See the height of climate changes. कितना, 1-2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, बट 3250 स्क्वायर किलोमीटर आइस कैप, एक पूरा आइस कैप जो ग्लेशियर है, आइस कैप दैट मेल्ट इन 35 days within a month. Yes, so it's melt, so it's a very dangerous situation. ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे, इट इज लाइक ओके, होता है, चलता है, मुझे क्या फर्क पड़ा, आई एम तो लिविंग इन भावनगर, बट अल्टीमेटली वी विल गोइंग टू पे, वी हैव टू पे। ये कोई ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब इसका मतलब नहीं मुझे या आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सी द क्लाइमेटिक चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे क्लाइमेट के अंदर, ओके। सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स, यमुनोत्री ग्लेशियर्स। सो नाउ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, पिघल रहे, अब रिसोर्सेज जो ओरिजिनेट जहां से रिवर्स होती है, सो सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, सूख रही है नदियां, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर हो रहे, वी कांट कोप अप विद दिस सिचुएशन। देन see this all are the news, a few news, इससे आप इतने न्यूज से आप समझ सकते हो कि क्लाइमेटिक चेंजेस, डेंजर तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है। नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग, सो वी नो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, बट एग्जैक्टली क्या होता है, हाउ इट्स हैपन, सो हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, पृथ्वी गर्म हो रही है, वातावरण गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट हाउ डज इट, कैसे, क्यों ऐसे हो रहा है? हम कोई स्टोव लेके, मशाल लेके तो बैठे नहीं पृथ्वी को गर्म करने के लिए, बट हाउ आवर अर्थ गेट हीटेड, सो हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? सो नंबर 1, CFC, we will talk one by one, these all are the greenhouse gases, chlorofluorocarbon, methane, that is the CH4, then the nitrous oxide, and number of other gases we will going to talk. Now say the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and halocarbon plays an active role in the greenhouse effect. These all are the gases, underline करो, greenhouse gases, ऐसे gases जो गर्मी को ट्रैप करते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, okay. So the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and halocarbons play an active role in the greenhouse effect. These all are the major gases which play the major role, vital role in greenhouse effect, जिसको हम ग्रीनहाउस इफेक्ट कह रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे जो गैसेस है जो गर्मी को ट्रैप कर रहे हैं, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and the halocarbon plays an active role. So ये आपको याद रखना है, these all are the gases which are we can say liable for this greenhouse effect, okay. So the increase in the proportion of these gases led to the problem of global warming. अब global warming क्यों हो रही? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, halocarbon, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड उसके अंदर बढ़ रहा है, उसका प्रपोर्शन, उसका प्रमाण वातावरण के अंदर बढ़ रहा है। सो द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड halocarbons play active role, and the proportion of this gases is increase in the atmosphere, and due to increase in this type of greenhouse gases the global warming is occurring or हो रहा है। So increase in the temperature by 0.6 degree Celsius in the last 100 years, और पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री बढ़ चुका है 100 साल के अंदर। सुनने में छोटा नंबर लग रहा है ना 0.6,
डेसिमल छोटा लग रहा है, बट अभी हमने न्यूज़पेपर में उसकी इफेक्ट देखी, ये 0.6 और ये तो कुछ ही समाचार है, कुछ ही नंबर है, कुछ ही पॉइंट है, उसके सामने हमने उसकी इफेक्ट पूरी देखी हुई है। So increasing the temperature by 0.6 degree Celsius in the last 100 year. Now see the each person in the world release 4.5 metric ton of CO2 carbon dioxide. अब see in this diagram, एक इंसान, अकेला एक इंसान, so each person in the world release 4.5 metric ton. मैट्रिक टन 4.5 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड ईच ईयर। मैं आप ईच पर्सन, तो सोचो दुनिया में 170 अरब की बस्ती है, पॉपुलेशन है, तो पृथ्वी पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, हम लोग कितना रिलीज कर रहे हैं, एंड हु ट्रैप दिस? ट्रीज। सो जस्ट रिलेट करो हाउ द ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। सोचो पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पृथ्वी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा। सी कार्बन डाइऑक्साइड 64% हम रिलीज करते हैं, देन मीथेन 10%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65% एंड हाइड्रोकार्बन 0.5% इन प्रोपोर्शन पृथ्वी पे। सी द proportion 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm पार्टिकल पर पार्ट पर मिलियन, जिसको कहा जाता है। पीपीटी मतलब क्या? इट्स अ पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, दैट व्हाट वी से इज द पीपीएम। सी आज से 100 साल पहले 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm part per million and now it is increased by the 350 ppm। जो 275 ppm था 100 साल पहले, आज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के 350 ppm पार्ट पर मिलियन हो चुका है। देखो कितना इंक्रीज हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो वी आर रिलीजिंग 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। नाउ सी द ग्लोबल टेम्परेचर, एक ग्राफ दिया है, ऐसे आप लोगों को एक ग्राफ दिया है, जैसे हम मेडिकल में हार्ट बीट देखते हैं ना, तो ऐसे एक आपको ग्राफ दिया है। And see the graph, it is increasing in the manner, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन शो कर रहा है ऑन पेज नंबर 41 ग्लोबल टेम्परेचर। सी इंक्रीजिंग शो कर रहा है, इट मींस पृथ्वी का टेम्परेचर कंटिन्यूअस इट इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग। सी इन द इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन लास्ट 150 ईयर, 150 साल, लास्ट 150 ईयर में आप देखो zigzag and increasingly it's going up. So now think, we know that the definite quantity of sugar or salt has to be added in vegetable or tea. Okay, what would happen if we add more sugar or salt? खाने के अंदर नमक भी जरूरी है, मीठा हो तो शक्कर भी जरूरी है, पर हमने कोई खाने में बिल्कुल हमने उसके प्रोपोर्शन को चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा नमक डाला तो वो खारा हो जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट एडिबल, खा नहीं सकते। बहुत ज्यादा शुगर डालती तो बहुत मीठा हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट एडिबल। ओके, सो इन द सेम वे देयर इज अ बैलेंस ऑफ पोर्शन ऑफ गैसेस। ये सभी पृथ्वी के अंदर गैसेस सभी जरूरी है, ऑल गैसेस आर रिक्वायर्ड बट इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। दो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी तो उसकी साइड इफेक्ट, जैसे खाने में नमक जरूरी है, मीठा जरूरी है, बट इफ यू विल ऐड अ मोर प्रोपोर्शन तो वो बेस्वाद हो जाएगा, क्या नुकसान करेगा आपको। सेम थिंग, ऑल गैसेस आर रिक्वायर्ड बट इट शुड बी इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। सो वी स्टडी द टेबल गिवन अबाउट द स्टेट हाउ मच एज वे रिस्पांसिबल एडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द ईयर। अब देखो प्लेस थिंग है, टाइम है, ईयरली ऑलमोस्ट एंड 24 आवर्स है, टाइमिंग इज गिवन, proportion of gases released that aggravates the greenhouse effect। अब हमारी कुछ एक्टिविटीज है जो ग्रीनहाउस इफेक्ट में गैसेस को ऐड कर रही है, ठीक है। देखो थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावाट का, हाँ। अब देखो ईयरली वो क्या कर रहा है, 6 लाख टन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है। थर्मल पावर स्टेशन जो है
जो सिर्फ 200 मेगावाट का है, तो वो ईयरली 9 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहा है। देन मोटर कार ईयरली 17 करोड़ टन। हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल से चलती है गाड़ियां, धुआं निकलता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस हम कितना बढ़ा रहे हैं? इट इज 17 करोड़ टन। 1 2 5 10 लाख नहीं, 17 करोड़ टन गैसेस वी आर प्रोड्यूसिंग। एसी ऑन एवरेज 2 आवर्स, सिर्फ आप एसी 2 घंटे चलाओ 24 घंटे के अंदर, तो 2230 kg हम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं एवरी डे। सिर्फ अगर आप 2 घंटा भी एसी चलाओ, तो सोचो हम रात भर तक एसी चलाते हैं, पूरा दिन एसी चलाते हैं, तो कितना हम गैस रिलीज कर रहे हैं। देन टीवी 24 आवर्स 190 kg टीवी भी, हमें लग रहा है टीवी भी पॉल्यूशन कर रहा है। यस, वी आर इंक्रीजिंग द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। देन द ट्यूबलाइट 24 घंटे लाइट चालू रखते हैं, सो ट्यूबलाइट 24 आवर्स 88 kg ग्रीन हाउस गैसेस। Computer 24 hour 130 kg gases we are reducing, and fridge 24 hour 920 kg। अभी तक कभी सोचा था ट्यूबलाइट चालू रखने से हम ग्रीन हाउस को असर कर रहे हैं? टीवी चालू करने से, कंप्यूटर चालू करने से? Do we ever think? No, we are least further with the thing। अब यहाँ पे आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं? What we are doing? Simply we are creating problem not on for environment, but we are creating problem for ourselves। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, लाइट बंद रखो, एसी बंद रखो, चल के जाओ, साइकिल का यूज करो। जस्ट थिंक आउट, इतनी छोटी एक्टिविटीज के अंदर भी हम कितना ग्रीन हाउस गैसेस वी आर रिलीजिंग टू द एटमॉस्फेयर। Now let's talk about few gases. First, methane, जिसको कहा जाता है CH4। Now the massive increase in the methane proportion from 315 ppm particle per million in the year 1750 to 1764 ppm in the year of 2005। मीथेन, इथेन, ये जो है वो गैस है जो जलते हैं, which produce energy। हमारे घर में जो गैसेस आते हैं, गैस के सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर होता है। सो ये अग्नि देता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, ब्लू फ्लेम करता है, जिससे ब्लू फ्लेम निकलती है। सो मैसिव इंक्रीज इन द मीथेन। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो मीथेन, द मैसिव इंक्रीज, कितना ज्यादा मीथेन बढ़ गया। सो मैसिव इंक्रीज इन द मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 315 पार्टिकल पर मिलियन इन ईयर ऑफ 1750। जो 1750, मतलब आज से 200 साल पहले भी जो प्रोपोर्शन था 315 ppm, now it is increased in 1764 ppm in year of 2005 due to the reasons listed below। अब उसके रीजन दिए। मीथेन कहाँ पे पहले यूज होता है? देखो, एक्सेलिंग ऑफ एनिमल एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब एनिमल जो एग्जिस्ट करते हैं ना, उसके अंदर जो गैस हम एक्सेलिंग करते हैं, उसके अंदर मीथेन होता है, ठीक है। अब वो मीथेन एनिमल्स, फिर मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, सो 14 करोड़ टन मीथेन एनिमल के एक्सेलिंग और द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। देन पैडी कल्टीवेशन। अब पैडी कल्टीवेशन जो हम कर रहे हैं, उसके चलते 15 करोड़ टन मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वी नो, जैसे फ्रूट्स पील, वेजिटेबल पील, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल नेचुरली जो कंपोज हो जाता है, उसमें से भी गैस निकलती है, बदबू निकलती है, गैस निकलता है, दैट इज अ मीथेन। और मीथेन मतलब आप देखो, एक्सेलिंग ऑफ एनिमल एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल, दैट इज अ प्रोसेस से पैदा होता है, दैट इज अ 14 करोड़ टन। देन द पैडी कल्टीवेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल। नाउ जस्ट थिंक आउट, हमें लगता है ये तो बस सब नेचुरल चीजें हैं, इसमें हम कहाँ कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ कुछ हम नुकसान कर रहे हैं, बट थिंक आउट, ऐसी एक्टिविटी से भी मीथेन कितना बढ़ रहा है, which once it was a 350 ppm in 1750, now it is increasing to
1764 ppm in the year of 2005. Now see, things to know, all the things used by the human in one day has 80% of the air in it. All the things used by human is one day has 80% of the air in it. हम जो भी यूज करते हैं उसमें से 80% एयर इन इट. सो अ मैन ब्रीथ 22,000 टाइम एवरी डे. 22,000 टाइम हम लोग ब्रीथ करते हैं. ओके, इन दिस वे अ मैन कंज्यूमिंग 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर डे. Due to this pandemic, we all face this pandemic situation. Okay, हम सब ने ये पैंडेमिक को फेस किया है और फेस कर रहे हैं. आप में से किसी ना किसी के घर में किसी को कोविड हुआ था और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी. और आपको पता है कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, शॉर्टेज हो गई. अब व्हाट इज द रीजन? पर डे ह्यूमन कंज्यूम 16 kg. अब सोचो, एक सिलेंडर भी, जिसके घर में कोविड हुआ था, हजारों लाखों रुपए के खर्चे हो गए. और 16 किलो ऑक्सीजन हम रोज लेते हैं, नेचर से लेते हैं, फ्री में लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी आर नॉट पेइंग सिंगल पेनी. So all the things used by human in one day has 80% of the air, and a man breathes 22,000 times every day. And in this way, man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. Okay. Then the nitrous oxide, जो हम दांत और डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, एनेस्थेसिया में जो गैस काम आता है, दैट इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस. सो द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm. इसके भी अलग-अलग उपयोग है नाइट्रस ऑक्साइड के, एंड वी आर यूजिंग इन अ डिफरेंट वे. देन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज द CFC. So due to the use of foam, plastic, refrigerator, air conditioner, sulfate aerosol spray, the minute particle having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol. So there has been increase in the CFC. So CFC में बढ़ गया, मीथेन बढ़ गए. अब ये सब चीजों के चलते ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोपोर्शन, जैसे हमने खाने में शुगर ज़्यादा डाल दी, सॉल्ट ज़्यादा डाल दी, जैसे स्वाद बिगड़ गया, उसी तरह से हमने अपनी एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेस इतना इंक्रीज कर दिया. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू दिस अर्थ गेट हीटेड. नाउ ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है, और उसकी इफेक्ट, वी नो द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, एंड यू नो what we have to pay and what we are paying, what we have paid, what we are paying, and what we are supposed to pay. It's a dangerous condition for mankind. Okay. See, as per the resolution passed by the UN on 23rd January 1995, 16 September is observed as a ozone day. Underline कर दो, very important, World Ozone Day. As per the resolution passed by the UN on 23rd January 1995, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है. जैसे 5 सितंबर हम टीचर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से 16 सितंबर ओजोन डे. एंड आफ्टर 1980 and year 2007 was the hottest year. कंपैरेटिवली दूसरे सालों के कंपेयर में पृथ्वी का तापमान सबसे ज्यादा 2007 में इंक्रीज हुआ था. सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड मेजर टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग एंड नंबर ऑफ पॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो जस्ट राइट टुडेस होमवर्क. See, this point and these chapters are very important, huh? So please keep in mind, this is the basic and at most important chapter for you. So homework, write a short note या तो simple. How does the
heated. पृथ्वी कैसे गर्म होती है? Right? Not. How does the earth get heated? You have to write in your own word, even you can draw the diagram. So this is your homework. Be sensible, be respectful towards the nature, otherwise we have to pay very high. With this message, I am ending up this lecture. Thank you, take care and goodbye.